कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 5 ਸਤੰਬਰ 2021 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਘੋੜੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੌਡੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਪੌਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਾਸ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਸ-ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਡੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਾਸ ਫਟ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਜੋ ਫਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਰਵੇ ਤੇ ਮਾਸ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਡੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋੜ ਸਕੇ। ਪੂਰੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ 2-2, 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਰਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਲੱਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। सारी दुष्ट आत्माएं इमरजेंसी लोगों से आउट, व्हीलचेयर के लोगों से आउट, अधरंगी लोगों से आउट। सब तरह के रोगों की आत्मा आपको छोड़ के चली जाए, सब तरह के रोग चले जाए। Be healed in Jesus name। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਅਨੈਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਪਿਟ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
पॉसिबल ये अमेजिंग हीलिंग हुई है इस भाई की लाइफ में। 7 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिनके कारण इनकी लेफ्ट लेग जो थी, टांग जो थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और इतना मोटा लोहे का शिकंजा लगा हुआ था, एक भी कदम, सिंगल कदम भी चल नहीं पाते थे। आज इनको उठा के चर्च में लेके आए और व्हील चेयर के सारे इनको चर्च में एंटर किया। लेकिन अभी जैसे ही आपने प्रेयर की अपोस्टल जी, 7 महीने के बाद आज इस भाई ने खड़े हुए और चल पा रहे हैं। अपोस्टल जी भाई पूरी रीति से हील हो चुके हैं। तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। ओ जीसस जीसस जीसस, ओ ये क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है? तारीफ करो जोर से, जोर से। ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਸਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਖੁਦ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਟ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ये एक बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। जैसे कि मरकुस अध्याय 5 में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और परमेश्वर की उसी जीवित सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और इन्हें कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से आजाद किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेखा है, मैं जलंधर कैंट की रहने वाली हूं और मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूं। 2021 जुलाई में मैं बीमार रहना शुरू हुई। उसके बाद मुझे मतलब कि जैसे मेरे को पेट में दर्द रहना शुरू हुआ, तो मुझे इतना नहीं पता लगता कि पेट में दर्द क्यों है। फिर उसके बाद मुझे कब्ज रहना शुरू हुई, तो जैसे मैं टॉयलेट जाती थी, टॉयलेट जाने में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मेरे को इतना दर्द होता था कि टॉयलेट नहीं आती थी। मुझे टॉयलेट में काफ़ी देर बैठना पड़ता था। टॉयलेट जाने के बाद भी मेरे काफ़ी देर तक दर्द रहता था। जब मैंने बाहर आना तो मेरे हाथ पैर ऐसे कांपने शुरू हो जाने जैसे शरीर में जान ही नहीं है। फिर उसके जब मैंने टॉयलेट बैठना तब मेरे साथ ऐसे ही होना, इतनी ज़ोर से दर्द होना। मेरे मतलब मेरा इतना था, मेरे पेन इतना ज़्यादा होता था कि मैंने अपना खाना भी कम कर दिया था। मतलब जहाँ लोग 3 टाइम खाते थे, वहाँ मैंने 1 टाइम खाना शुरू कर दिया कि मुझे बार टॉयलेट ना जाना पड़े। और अगर मैं डरती थी, अगर मैं टॉयलेट गई तो मेरे दर्द शुरू हो जाएगी। जब मेरे गुप्त अंग में इतना दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो फिर मुझे डॉक्टर के पास, नज़दीक डॉक्टर के पास ले जाते थे मेरे घर वाले। जब मैं डेली डॉक्टर के पास जाने लगी, मेडिसिन लेने लगी, फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि अल्ट्रासाउंड कराओ। तो फिर मैं मतलब जलंधर के जहाँ बड़े स्कैन होते हैं वहाँ पर मैं गई अल्ट्रासाउंड कराने। तो उन्होंने मेरे को दिखाया, मतलब अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने मेरा। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कहते हैं आप ऐसे करो, एक बार CT स्कैन कराओ। फिर मैं एक जलंधर के बड़े स्कैन, जहाँ CT स्कैन मेन होती, मैं वहाँ पर CT स्कैन कराने गई। जो स्कैन कराया उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ मेरे घर वालों को बताया कि इनको भाई कैंसर हो चुका है। तो उसके बाद मैं घर गई, मतलब मुझे घर में भी किसी ने नहीं बताया कि क्या बात है। उनको ये था कि अगर इसको बताया तो उसको ज़्यादा टेंशन हो जाएगी और टेंशन में बीमार हो जाएगी, तो इस करके उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया।
तो आपस में एक दूसरे के साथ बात करने लगे हुए, तो मुझे शक गया कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो ये तब करके मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। बाद में मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने बताया कि आप भाई आपको ये प्रॉब्लम हुई है, आपको कैंसर हो गया। उसकी वजह मेरे हाथ पैर से जैसे ज़मीन निकलती है ना, वैसे निकल गई और मैं रोने लगी। मेरे परिवार वालों ने मुझे बोला कि भाई डॉक्टर ने कहते हैं कि हम इस चीज़ में हाथ नहीं डालना चाहते, ये बीमारी गंभीर है और आप ऐसे करो, इनको ना आप PGI ले जाओ। जब मैं PGI गई तो वहाँ पर मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट देखे कैंसर वाले, जिनको देख देख के मुझे डर लगने लग गया। मेरा बेटा डॉक्टर के पास मेरी रिपोर्ट लेके गया। डॉक्टर ने कम से कम आधा घंटा मेरी रिपोर्ट चेक करी। डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको 3री स्टेज का कैंसर हो चुका है, जो रेक्टम कैंसर है, तो वो आपको टॉयलेट की जगह मतलब से निकाला जाएगा। जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको 3rd स्टेज का कैंसर है, तो मतलब कीमोथेरेपी होगी, ऑपरेशन होगा, मतलब ये सारा बताया उन्होंने मुझे। ऑपरेशन सुन के मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई, मैं ऑपरेशन कैसे कराऊं। फिर हम वापस आ गए घर आने के बाद मैं मतलब रोती रही काफ़ी, मतलब ऐसे मेरे को टेंशन होती रही कि अब क्या होगा, मैं कैसे करूं, पता नहीं मैं कितने दिन जीऊँगी, क्या है, कुछ नहीं ऐसा पता लग रहा था मुझे। मैं ज़्यादातर मेरे को शाम को रोना आता था कि जब सारे घर आ जाते थे, मतलब उसके बाद घर में तो रौनक वगैरह होती थी, तो मैं अपने बच्चे का मुंह देखती थी कि अगर इसको क्या होगा, अगर जैसे अभी आता है, इसको कौन रोटी पूछेगा, कौन इसको मतलब खिलाएगा। मतलब मेरे को उसका ज़्यादा टेंशन होती थी कि अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो उसको कौन देखेगा। मतलब इतना था कि बस मैं ऐसा लगता था मैं थोड़े दिन की मतलब हूँ, मैं बचूंगी नहीं, मतलब ऐसा था मेरे लिए। मतलब बहुत मुश्किल टाइम था उस टाइम मेरे लिए कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत। PGI वालों ने मुझे बोला कि भाई आपकी कीमोथेरेपी वगैरह होनी है, तो आप मतलब दवाई मेडिसिन चलेगी आपकी, पहले फिर कीमोथेरेपी वगैरह होगी, उसके बाद ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन वगैरह दी, मैंने मेडिसिन वगैरह खाई, जिस खाने के बाद मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मेरे रिश्तेदारों को पता लगा मुझे 3री स्टेज का कैंसर है, तो उन्होंने तो जैसे मेरी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये तो बचेगी नहीं अब, जिसको रेक्टम कैंसर बोलते हैं ना, उसकी वजह से मेरा मतलब वेट लूज हो गया, रंग काला होना शुरू हो गया। मतलब इतना सब मुझे बोलते कि तुझे क्या हो गया, मतलब तेरा रंग इतना काला हो गया। जो मेरे कैंसर का ट्रीटमेंट चला, मतलब उसमें मैंने मेडिसिन वगैरह चली, उसमें मैं हज़ारों रुपये अपना खर्च कर चुकी थी, और मेरे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही कमाने वाली थी, और वो भी बीमारी करके मैं घर में बैठ गई। तो इसकी वजह से मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी अपना इलाज कराने के लिए भी। जब मुझे भयानक रोग, मतलब कैंसर जैसा मुझे भयानक रोग हो गया था, तो मतलब मैं इतनी घबरा गई थी, मेरे को कुछ नहीं पता लग रहा था मैं क्या करूं। तो मेरी दरानी जो है ना, उसने मेरे बेटे को बोला कहीं ना जाओ तुम, खामड़ा चर्च में तू अपनी मम्मी को लेके जा, वहाँ पर आप तुम्हारे मतलब परमेश्वर सुनेगा और वो आपको हील करेगा वहाँ पर। तो उसके बाद मेरा बेटा मुझे खामड़ा चर्च लेके आने लगा। जब मैं पहली बार खामड़ा चर्च आई, जैसे मैंने चर्च के अंदर पैर रखा, तो जैसे कोई चीज़ मुझे रोकती है ना कि तू इस चर्च के अंदर नहीं आना, तू बाहर चली जा। पर मैं फिर भी चर्च के अंदर आई। जब मैं चर्च के अंदर आई तो मेरे जैसे कुछ निकलता ना शरीर के अंदर से, मेरे ऐसे कुछ निकला। जब मैं पहली बार चर्च आई, मैंने लोगों की गवाहियाँ सुनी यहाँ पर, मतलब ऐसी गवाहियाँ सुनी कि यहाँ पर चंगे होते हुए देखा। जब मैंने देखा कि यहाँ सब चंगे हो रहे, तो मैं भी चंगी होंगी। जब प्रभु ने इनको मतलब चंगाई दी है तो मुझे भी चंगाई देंगे। मैं लगातार चर्च आती रही, प्रभु की हजूरी में बनी रही। 12 अगस्त 2021 में जब मैं चर्च आई तो परमेश्वर के दास ने मतलब कैंसर के रोगियों के लिए मतलब प्रेयर करी। जो प्रेयर करी मैं उसको मैंने अपने लिए रिसीव किया। जिस दाहिने हाथ पर हाथ तेल लगा, उस हाथ को उठा और बोलो, खुदाबंद का दाहिना हाथ भयानक काम सिखाता है। ये भयानक है यरदन नदी को तो भाग करना, ये भयानक है यीशु मसीह के नाम में उस बीमारी को डांटना और उस एड्स को, उस कैंसर को जाता हुआ देखना। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
जब मैंने प्रार्थना रिसीव करी 12 अगस्त 2021 में, फिर मैं उसके अगले ही दिन मैंने अपने टेस्ट करवाए। जब मैंने अपने टेस्ट करवाए तो वो मेरे सारे नॉर्मल आए। जब मेरी कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आई तो मैं इतना रोई ना, उसी हॉस्पिटल में मैं इतना रोई। उसी टाइम मैंने वहीं पर ही खड़े खड़े परमेश्वर का धन्यवाद किया कि हे प्रभु, मैं आपकी हजूरी में बनी रहूँगी और आपने मेरा इतना बीमारी जो है मेरी हील करी है। मैं पहले टॉयलेट जाती थी, मुझे इतना दर्द होता था, पर अब मुझे कोई दर्द नहीं होता। अब मैं आराम से टॉयलेट जा सकती हूँ। जब मेरे कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आई तो मेरे रिश्तेदार सारे हैरान थे कि मतलब ये कैसे हो गया। तो मैंने उन्हें बोला भी मेरे को तो यीशु मसीह ने मेरे को ठीक किया है, चंगा किया उन्होंने। उस प्रेयर के बाद मैं कैंसर जैसी बीमारी से आज़ाद हो चुकी हूँ, मतलब ठीक चंगी हो चुकी हूँ। अब मैं प्रॉपर खाना खाती हूँ और मतलब मेरा वेट भी बढ़ चुका है, मेरा रंग भी साफ़ हो चुका है। अब इस मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि मैं प्रभु ने मेरे को इस बीमारी से आज़ाद कर दिया। मैं उनको, जो लोग मतलब कैंसर से पीड़ित हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि प्रभु में विश्वास बनाए रखें, वो आपकी ज़रूर सुनेगा और आपको ज़रूर हील करेगा। जैसे मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाया है तो आपको भी इस बीमारी से ज़रूर छुटकारा दिलाएंगे। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें जोर से, शब्द तालियों के साथ, और जोर से तालियों के साथ शब्द तारीफ करें। जैसा खुदा ने प्यार किया उस